Hello students, welcome back to 7th English class. So students, in the previous two videos, we covered first and second half part of chapter 2, The Gift of Chappals, written by Basantha Surya. So students, today we will continue with its second part. So let's have a quick recap. Lali was learning to play the violin from the music master. The music master was a bony man with a mostly bald head and an old-fashioned tuft. He wore a gold chain around his leathery neck and a diamond ring on his hand. Lily tried to follow him on the violin, but there was a great difference between their performances. A beggar arrived at the gate, calling out, "Amma, Amma." Ravi's mother asked Ravi to send this beggar away and said it was time he found another house to beg from. The beggar had already settled himself in the garden under the neem tree, waiting for the arm. When Ravi told him to leave, the beggar sighed wearily and asked for some rest. He explained that the hot sun and the melted tar on the road had caused large blisters on his feet. Feeling sorry for him, Ravi, Meena and Mridu decided to help. They searched the whole house for a pair of slippers. Finally, they found a shabby-looking but sturdy old pair of slippers and planned to give them to the beggar. So students, this was the quick recap. Now, let's start the story. "Here," said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. "Wear these and don't come back." अब रवि क्या करता है कि वो जो स्लीपर्स हैं वो बैगर के आगे रखता है और बोलता है कि इनको पहनो और फिर कभी वापस मत आना. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his shawl over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessings to the children. Muttering is when your voice is not clear, right? अब जो बैगर है वो क्या करता है कि स्लीपर्स को स्टेयर करता है, उनको ध्यान से अच्छे से देखता है और जो टॉवल उसने नीम ट्री के नीचे बिछाया होता है वो उसको अपने शोल्डर पे उसको डालता है और स्लीपर्स को पहनता है और बच्चों को आशीर्वाद मतलब मटरिंग करके थोड़ा अनक्लियर वॉइस में उनको आशीर्वाद देखते वो वहां से चला जाता है. In a minute, he had vanished around the corner of the street. और 1 मिनट के अंदर ही वो स्ट्रीट से गली से गायब हो जाता है. Vanished is गायब होना, ओझल होना. The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. अब जब म्यूजिक मास्टर उसको म्यूजिक सिखा के जब वो बाहर आता है तो वो क्या देखता है कि तीनों बच्चे जो है वो वहां पे ट्री के नीचे बैठे हुए हैं और मार्बल्स खेल रहे हैं. तब उनको एक अनएप्रिशिएटिव से लुक देता है, मीन्स डिसअप्रूवल वाला लुक देता है, उनको एंग्री लुक देता है. वो ये सोचता है कि ये बच्चे हैं ये कुछ पढ़ाई वढ़ाई तो करते नहीं है और दिन भर मार्बल्स खेलते रहते हैं, सो वो उनको एक एंग्री लुक देता है. लल्ली, ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स. अब कुछ ही मिनट्स में वो लल्ली को आवाज लगाता है. शी हरिड अप टू हिम. हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर? आई रिमेम्बर हैविंग केप्ट देम देयर. हियर. अब वो लल्ली को आवाज लगाता है और लल्ली भी जल्दी से उसके पास आ जाती है. अब वो लल्ली को पूछता है कि क्या आपने मेरे चप्पल्स यहाँ पे देखे? मुझे तो याद है कि मैंने अपने चप्पल्स यहीं पे रखे थे. Ravi, Mridu and Meena silently watched Lally and the music master search every corner of the veranda. अब जो मृदु रवि एंड जो मीना है अब उनको तो पता है कि उन्होंने वो म्यूजिक मास्टर की चप्पल जो है वो उसको दे दी है बैगर को, तो अब वो बड़े आराम से साइलेंटली म्यूजिक मास्टर और लल्ली को देखते हैं जब वो अपने चप्पल्स को सर्च कर रहे होते हैं. He scurried around. Scurried is moved quickly. वो जल्दी इधर उधर देखते हैं. Looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Crouching is bending down low with your knees bent. जब आप अपने knees को bend करके मतलब बेंट होते हो, दैट्स कॉल्ड क्राउचिंग. सो अब वो इधर उधर चप्पलें ढूंढ रहे हैं, रेलिंग के ऊपर देखते हैं, नीचे झुक के बेंड होके वो फ्लावर पार्ट्स के बीच भी चप्पल्स को ढूंढते हैं.
brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. अब वो म्यूजिक मास्टर बोलता है कि मेरी जो चप्पल्स थे वो ब्रांड न्यू थे और मैं उनको खरीदने कहाँ गया था, मैं उनको खरीदने माउंट रोड गया था. He went on saying, और वो ये कहते जा रहे थे, they cost a whole month's fees. Do you know? अब वो लली को बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि उनकी कॉस्ट कितनी थी, कितनी प्राइस थी चप्पलों की. तो बोलता है कि उनकी कॉस्ट इतनी थी जितनी की तुम्हारी पूरे मंथ की फीस जो तुम मुझे देती हो उतनी उन स्लीपर्स की कॉस्ट थी. Soon Lally went in to tell her mother. अब जल्दी ही लल्ली अपनी मदर को बुलाने जाती है. रुक्मणी appeared looking harassed with पाती following her. रुक्मणी बाहर आती है लेकिन वो थोड़ी परेशान सी होती है और पाती भी उसके साथ होती है. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. अब वो बोलते हैं कि वो चप्पल कहाँ जा सकती है. ये इसके बारे में सोचना भी बहुत सा अपसेटिंग सा लग रहा है कि कोई चप्पल को चुरा के चला गया. Some vendors come to the door. Worried पाती. अब पाती को भी हैरानी हो रही थी कि बहुत सारे वेंडर्स जो हैं सामान बेचने वाले घर के आगे डोर तक आते रहते हैं, तो क्या पता स्लीपर्स कौन ले गया. रुक्मणी caught sight of रवि, मृदु एंड मीना sitting under the tree. अब रुक्मणी की नजर किस पे पड़ती है, वो जो तीनों कजन्स होते हैं रवि, मृदु एंड मीना, तो रुक्मणी जो है वो उनको वहां पे ट्री के नीचे बैठे हुए देखती है. Have you children? She began and then seeing they were curiously quiet. अब वो बच्चों को पहले उसने पूछना वो शुरू करती है कि हैव यू चिल्ड्रन, क्या आपने क्या बच्चों आपने. फिर वो रुक जाती है क्योंकि वो ये सोचती है कि बच्चे तो बहुत ही क्वाइट बैठे हुए हैं जबकि घर में स्लीपर्स गुम हो गए हैं. सारे घर के जो मेंबर्स हैं वो सर्च कर रहे हैं चप्पल्स को, तो बच्चों को तो इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि जब भी कोई चीज गुम होती है तो बच्चे तो सबसे आगे जाते हैं उनको ढूंढने के लिए. तब उसको थोड़ा डाउट होता है, वो ये सोचती है कि ये तो इतनी क्वाइट होके बच्चे बैठे हैं. went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda. अब बोलती है कि क्या आपने किसी को, फिर वो अपनी जो बात है वो चेंज कर लेती है. अब वो पूछती है कि क्या आपने किसी को बरांडा में क्वाइटली से किसी को देखा है कि कोई चुपचाप से आया हो और फिर चला गया हो. लर्किंग इज वेटिंग क्वाइटली विदाउट ग्रैबिंग अटेंशन, राइट. A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. अब जो रुक्मणी थी उसको बच्चों पर थोड़ा डाउट हो जाता है. And she was frowning. अब उसके जो फोरहेड के बीच में एक वी शेप एक लाइन सी बन जाती है. मतलब जब आप किसी पे फ्राउन करते हो, गुस्सा करते हो, सो एक वी शेप एक लाइन बन जाती है. सो मतलब जो रुक्मणी थी वो अभी थोड़ा गुस्सा हो गई थी. Another stayed tighter. One appeared in place of her usually soft प्लेजेंट माउथ. अब उसका जो फेस था, जो उसका माउथ था, वो यूजुअली वो बहुत फ्रेंडली थी, वो ही काइंड थी, लेकिन अब उसको गुस्सा आ गया था तब वो थोड़ा सा उसका फेस भी फर्म हो गया था, वो सीरियस हो गई थी. रुक्मणी वॉज एंग्री, थॉट मृदु विद अ शिवर. अब मृदु को तो ये सोचते हुए भी शिवरिंग सी हो रही थी, वो डर गई थी कि रुक्मणी को गुस्सा आ गया है. She won't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. अब जो मृदु है वो अपने आप में यही मतलब अपने आप से ये बात कर रही है कि रुक्मणी को उस पोर बैगर की कंडीशन के बारे में पता होता कि उसके पैरों में कितने सारे छाले थे, कितने ब्लिस्टर्स थे, तब रुक्मणी कभी भी गुस्सा नहीं होती. तो सो ये मृदु जो है वो अपने आप से ही बात कर रही है. Taking a deep breath, she cried, Rukmini, there was a beggar here. Poor thing, he had such boils on his feet. अब मृदु जो है वो एक डीप ब्रेथ लेती है, रुक्मणी को बताती है कि यहाँ पर एक बैगर आया था. सो वो मतलब सबसे पुअर थिंग ये थी कि उसके फीट में क्या थे, बहुत सारे बॉयल्स थे, बहुत सारे ब्लिस्टर्स थे. सो सैड रुक्मणी ग्रिमली टर्निंग टू रवि. अब जो रुक्मणी है वो रवि की तरफ टर्न करके बोलती है कि सो कि फिर क्या हुआ, अगर उसके पाँव में बहुत सारे ब्लिस्टर्स थे, देन व्हाट हैपेंड. यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हियर. अब वो जो रुक्मणी है वो बोलती है कि आपने क्या किया कि आपने म्यूजिक मास्टर की चप्पल है वो बैगर को दे दी, जो कि यहाँ पे जो कि ओल्ड बैगर यहाँ पे रोज आता था. आपने क्या किया, आपने म्यूजिक मास्टर की चप्पल बैगर को दे दी. अब रुक्मणी रवि को पूछती है. चिल्ड्रन दीज डेज ग्राउंड पाती. अब पाती भी बड़बड़ाती है कि आजकल के बच्चे. अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स. ही वाज सो काइंड एंड जनरस. अब रवि बोलता है
अम्मा से वो बात करता है कि अम्मा, क्या आपने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था कि वो कर्ण हु गिव एवरीथिंग ही हैड, कि अब रवि जो है वो अपनी ग्रैंड मदर से बात कर रहा है कि अम्मा, आपने जो मुझे एक स्टोरी बताई थी कर्ण वाली, कि जो कि अपना अपना सब कुछ किसी को दे देता है, इवन कि उसके जो गोल्ड इयररिंग्स थे वो भी उसने दान में दे दिए थे। ही वॉज सो काइंड एंड जनरस, कि वो कितना काइंड था, कितना वो काइंड था और कितना जनरस, कितना उदार था। वो रवि जो है वो अपनी ग्रैंड मदर को पूछता है। सिली snapped रुक्मणी, Karna didn't give away the other people's things, he only gave his own। अब रुक्मणी बोलती है कि करना जो है वो लोगों की चीजें किसी को नहीं देता था, करना जो है वो अपनी चीजें लोगों को देता था। But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet. Ravi rushed rashly on. Rashly is boldly or rude। अब रवि जो है वो रूड होके बोलता है कि मेरी चप्पल्स तो बैगर के फिट में आ ही नहीं रही थी, राइट? एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। अब वो अपनी अम्मा से क्वेश्चन करता है कि अगर मेरी चप्पल बैगर को फिट आ जाती और मैं अपनी चप्पल उसको दे देता तो क्या तब आप माइंड नहीं करते, तो तब क्या आप गुस्सा नहीं होते? अब ये क्वेश्चन जो है ये रवि अपनी ग्रैंड मदर से कर रहा है। रवि said रुक्मणी, वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। अब रुक्मणी जो कि बहुत इस टाइम बहुत एंग्री है, तो वो रवि को बोलती है कि गो इनसाइड, कि इसी पल अंदर चले जाओ। She hurried indoors and brought out गोपू मामा's hardly worn new chappals। अब जो रुक्मणी है वो अंदर जाती है और गोपू मामा की hardly worn, अब मतलब न्यू ही चप्पल थी वो, हार्डली एक दो बार उन्होंने लगाई होगी, घिसी बिल्कुल नहीं थी वो, तो वो न्यू चप्पल लेके वहां से आती हैं। These should fit you sir, please put these on। अब वो बोलती है कि ये चप्पल्स आपको फिट आ जाएंगी, इनको पहन लो। I am so sorry, my son has been very naughty। अब रुक्मणी बोलती है कि उनसे सॉरी बोलती है कि मेरा जो सन है, मेरा बेटा है, वो बहुत ही शरारती हो गया है। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप। अब जो म्यूजिक मास्टर्स की जो आंखें है वो चमक जाती है, उनमें चमक आ जाती है। He put them on, trying not to look too happy while I spoke। He put them on। अब म्यूजिक मास्टर जो है वो उन चप्पलों को पहन लेता है, एंड ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और उनको ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो ज्यादा खुश नहीं है। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू। अब उसने बोला है कि ठीक है, अब आपने मुझे चप्पलें दे दी हैं तब मैं उनको लगा देता हूँ, लेकिन वो उनको उनके सामने बहुत ही मतलब हैप्पी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी चप्पल्स जो थी वो बहुत ही डर्टी लुकिंग चप्पल्स थी और मुझे उनके बदले एक न्यू चप्पल्स मिल गई हैं। उसको खुशी तो थी, बट वो अपनी खुशी जो है वो उसको सामने नहीं आने दे रहा था। These days children have no respect for elders, what to do। अब वो म्यूजिक मास्टर बोल रहा है कि आजकल के बच्चे तो बड़ों के लिए तो उनके लिए कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं। what to do, क्या किया जाए? हनुमान इनकारनेट ओनली रामा कैन सेव सच अ naughty फेलो। उसने बोला कि हनुमान ने अवतार ले लिया है और एक राम भगवान ही है जो कि इन नॉटी फेलोस, इन शरारती बच्चों से हमें बचा सकते हैं। रुक्मणी's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey। अब रुक्मणी को थोड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे को कोई मंकी बोल ले। इवन कि वो जो मंकी था वो होली मंकी के बारे में बात की थी, हनुमान जी के बारे में बात की थी, बट रुक्मणी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उसके बेटे को किसी ने मंकी बोला है। She stood stiff and straight by the front door। अब वो सीधा फ्रंट डोर के सामने सीधा गुस्से से खड़ी थी। It was clear she wanted him to leave quickly। अब ये तो क्लियर था कि वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी म्यूजिक मास्टर यहाँ से चला जाए। When he had clattered off in his new chappals, she said, clattered off होता है gone off nicely। जब आप चप्पलों की आवाज, जब आप जाते हो तो चप्पल्स की टक टक की आवाज होती है, दैट्स कॉल्ड clattered off। When he had clattered off in his new chappals, जब वो जो म्यूजिक मास्टर जो थे वो अपनी चप्पल लगा के जब वहां से चले जाते हैं, she said, मृदु come in and have some tiffin। वो मृदु को बोलते कि अंदर आओ और कुछ खा लो। Honestly, do you children think of such things। अब बोलते कि बच्चों आप ये आपके दिमाग में ये सब चीजें कहाँ से आती हैं? Thank God your गोपू मामा doesn't wear his chappals to work। बोलते हैं कि रुक्मणी बोलती है कि थैंक गॉड के जो आपके गोपू मामा थे वो अपने काम पे अपनी चप्पल्स को पहन के
नहीं गए हैं। As she walked towards the kitchen with मृदु and मीना, she suddenly began to laugh. वो जैसे ही किचन में मृदु और मीना के साथ आती है तब वो बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. अब बोलती है कि जैसे ही आपके गोपू मामा काम से घर आते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनको बहुत ही जल्दी पड़ी होती है, वो जल्दी जल्दी अपने शूज और सॉक्स उतारते हैं और जल्दी से अपनी चप्पल पहनते हैं. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? अब वो बोलती है कि जब आपके मामा घर आएंगे और अपने शूज और सॉक्स को उतार के जब चप्पल पहनने के लिए चप्पल्स को ढूंढेंगे तब उनका क्या रिएक्शन होगा जब मैं उनको ये बताऊंगी कि मैंने आपकी चप्पल जो है वो म्यूजिक मास्टर को दे दी है. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ second part, right? Now let's move to question answers. Describe the music teacher as seen from the window. अब आपने ये पढ़ा भी था ये जो चैप्टर सेकंड था इसके पार्ट फर्स्ट में पढ़ा भी था कि म्यूजिक मास्टर को उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है. जब वो विंडो से उसको देखते हैं बच्चे तो म्यूजिक मास्टर को कैसे डिस्क्राइब किया उन्होंने. द म्यूजिक मास्टर वाज अ थिन bony man with a mostly bald head and old-fashioned tuft. He wore a golden chain around his neck and a diamond ring on his finger. Right? What makes Mridu conclude that beggar has no money to buy chappals? अब मृदु ने ये कैसे कंक्लूड किया था कि beggar के पास चप्पल्स खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं. मृदु saw that the beggar was wearing torn clothes and his feet were blistered and bare. This made her think that he had no money to buy chappals. जब मृदु ने ये देखा कि इस बैगर ने तो फटे हुए कपड़े पहने हैं और इसके पाँव में इतने छाले पड़े हैं, ये नंगे पाँव हैं, तब मृदु ने ये आइडिया लगा दिया कि बैगर के पास पैसे नहीं हैं चप्पल्स खरीदने के. What does she suggest to show her concern? अब मृदु ने क्या सुजेस्ट किया था, अपना कंसर्न शो करने के लिए मृदु ने क्या सुजेस्ट किया था. She suggested that they should give the beggar a pair of chappals. अब मृदु ने ये सुजेस्ट किया था कि हम बैगर को एक पेयर दे देते हैं चप्पल्स का. What do you think रुक्मणी really wanted to ask? आप क्या सोचते हो कि रुक्मणी रियली में उनसे क्या पूछना चाहती थी. She really wanted to ask whether the children had taken or hidden the music teacher's chappals. अब रुक्मणी सबसे पहले तो उनसे यही पूछना चाहती थी कि क्या उन्होंने म्यूजिक मास्टर्स की चप्पल जो थी वो कहीं छुपा दी है या फिर उन्होंने उसको किसी को दे दिया है. राइट? Why did she change her question? फिर रुक्मणी ने अपना क्वेश्चन चेंज क्यों किया था. She changed her question because she did not want to accuse the children directly, क्योंकि वो डायरेक्टली बच्चों को accuse नहीं करना चाहती थी. So she changed her question. What did she think had happened? उसने क्या सोचा कि क्या हुआ होगा. She thought that someone had stolen the music teacher's चप्पल from the veranda. उसने ये सोचा कि किसी ने म्यूजिक मास्टर की चप्पल वेरांडा से चुरा ली है. On getting Gopu Mama's chappals, the music teacher tried not to look too happy. Why? अब जब गोपू मामा की चप्पल म्यूजिक मास्टर को मिल गई थी तो म्यूजिक मास्टर ने अपने आप को हैप्पी शो क्यों नहीं किया था. He was pleased to get a better pair of chappals, but he tried not to show his happiness because it would seem rude after losing his own pair. क्योंकि म्यूजिक मास्टर की जो चप्पल थी वो तो शैबी लुकिंग थी, राइट, डर्टी चप्पल थी उसकी, और उसके बदले उसको न्यू चप्पल मिल गई थी. लेकिन फिर भी उसने आपको हैप्पी शो नहीं किया था क्योंकि वो जो था वो अपने आप को रूड ही शो होने देना चाहता है कि वो डिसअपॉइंट है कि उसकी चप्पल गुम. अंदर से तो वो हैप्पी था बट बाहर से वो डिसअपॉइंट शो कर रहा था कि मेरी चप्पल जो है वो गुम हो गई. On getting a gift of chappals, the beggar vanished in a minute. Why was he in such a hurry to leave? कि जब उसको म्यूजिक मास्टर को चप्पल्स मिले थे गिफ्ट में तब उसने वो एक ही मिनट के अंदर वो वैनिश क्यों हो गया था, वो जल्दी क्यों चला गया था. The beggar was afraid that someone might change their mind and take the chappals back. अब beggar को ये लगा कि क्या हो सकता है कि कोई माइंड अपना चेंज कर ले और मेरे से चप्पल दोबारा ले ले. Therefore he quickly left with the gift before anything could happen. अब उसने जब चप्पल लगाए तो जल्दी से वो चला गया क्योंकि उसको ये लगा कि कहीं कोई अपना माइंड चेंज ना कर ले और दोबारा से मेरे से कोई चप्पल ना ले ले. सो वो जल्दी से वैनिश हो गया. सो
Let's move to next question. Read the following sentences. If she knows we have a cat, Pati will leave the house. She won't be so upset if she knows about the poor beggar with sores on his feet. If the chappals do fit, will you really not mind? Students, अब ये जो sentences हैं आपने इनको केयरफुली से सुना होगा. So ये sentences जो हैं ये if से शुरू हुए हैं. If she knows we have a cat, अगर उसे पता होता कि हमारे पास कैट है, बिल्ली है, तो पाती जो है वो घर छोड़ के चली जाएगी. She won't be so upset if she knows about the poor beggar with sores on his feet. अगर उसे poor beggar की कंडीशन के बारे में पता होता कि उसके पैरों में छाले हैं, तब वो गुस्सा नहीं होती. If the chappals do fit, will you really not mind? अगर ये चप्पल मुझे फिट आ जाते, अगर ये चप्पल उसे फिट आ जाते, तब क्या आप माइंड नहीं करते? So students, we are here with if clause. अब ये जो sentences हैं ये if से शुरू हुए हैं और टू sentences को यहाँ पे connect किया है if के साथ, right? So rewrite each of the following pairs of sentences as a single sentence. Use if at the beginning of the sentence. अब ये जो दो sentences हैं आपने if के साथ उनको connect करना है. Walk fast, you will catch the bus. जल्दी चलो, तुम्हें बस मिल जाएगी. So आपने क्या करना है कि if के साथ दो sentences को connect करना है. So अगर हम इसको ऐसे समझे तो हम बोलेंगे कि अगर तुम जल्दी चलोगे तो आपको बस मिल जाएगी. If you walk fast, you will catch the bus. Don't spit on the road, you will be fined. रोड पर स्पिट मत करो, आपको फाइन हो जाएगा. तो अगर हम इसको ये समझे कि अगर तुम रोड पे स्पिट करोगे तो आपको फाइन हो जाएगा. If you spit on the road, you will be fined. So these are some examples. Now don't tire yourself now, you won't be able to work in the evening. So students, ये एक सेंटेंस है. So आपने इसको if के साथ कनेक्ट करना है, right? Don't tire yourself now, अपने आप को मत थकाओ. You won't be able to work in the evening, तुम शाम को कुछ भी काम नहीं कर पाओगे. So अगर हम इसे समझें कि बोलना कैसे है कि अगर तुम अपने आप को थकाओगे तो तुम शाम को काम नहीं कर पाओगे. तो इसको बोलना कैसे है? If you tire yourself, you won't be able to work in the evening. कि अगर तुम अपने आप को अभी थका दोगे तो तुम शाम को काम नहीं कर पाओगे. So next, study regularly, you will do well in the examination. रेगुलरली स्टडी करो, तुम एग्जामिनेशन में अच्छा कर पाओगे. सो आपने इसको क्या करना है? इफ के साथ कनेक्ट करके बोलना है. सो अगर तुम स्टडी करोगे रेगुलरली तब तुम एग्जामिनेशन में भी अच्छा करोगे, राइट? सो इफ यू स्टडी रेगुलरली यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन. सो नेक्स्ट, वर्क हार्ड, यू विल पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन. सो वर्क हार्ड, मेहनत करो, तुम एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए. सो अगर हम इसको बात करें कि बोलना कैसे है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए. इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन. सो आपने ये याद रखना है कि जब आपको इफ से सेंटेंस शुरू करना है, सो आफ्टर सब्जेक्ट आपने वर्ब के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना है. जब आप इफ से टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करोगे, सो आफ्टर इफ आपने क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होगा उसके साथ में कोई भी विल या किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है. बी पोलाइट टू पीपल, दे विल आल्सो बी पोलाइट टू यू. कि लोगों से पोलाइट रहो, लोग भी आपसे पोलाइट रहेंगे. सो बोलना कैसे है इसको कि अगर आप लोगों से पोलाइट रहोगे तो लोग भी आपसे पोलाइट रहेंगे. इफ यू आर पोलाइट टू पीपल दे विल आल्सो बी पोलाइट टू यू. सो डोंट टीज द डॉग, इट विल बाइट यू. सो इसको बोलना कैसे है, ये सेंटेंस कैसे है? डोंट टीज द डॉग, डॉग को टीज मत करो, इट विल बाइट यू,
ये आपको बाइट करेगा, आपको काटेगा। सो कि अगर आप डॉग को टीज करोगे तो ये आपको काटेगा। इफ यू टीज द डॉग it will bite you. So students, this was our if clause. Now let's move to next question. So ये कुछ एक पैराग्राफ है। सो आपने क्या करना है कि इसमें आपको verbs के फॉर्म दिए हुए हैं, राइट। सो आपने क्या करना है कि verb के फॉर्म को उनके हेल्पिंग verb के साथ यूज करना है। Today is Sunday. I am wondering whether I should stay at home or go out. कि आज संडे है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं घर में स्टे करूं या फिर बाहर जाऊं। इफ आई, यहाँ पे डैश है, इफ आई डैश आउट, आई डैश द लवली संडे लंच एट होम। सो यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट में गो दिया है, राइट। और ये सेंटेंस जो है ये इफ से शुरू हो रहा है। सो यहाँ पे क्या आएगा कि इफ आई गो आउट, अगर मैं बाहर जाता हूँ, आई विल मिस द लवली संडे लंच, कि अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मैं अपना संडे का अमेजिंग सा लंच जो है उसको मिस कर दूंगा। सो ये इफ क्लॉज यहाँ पे यूज हो रही है। सो आपने यहाँ पे इफ आई गो आउट, यहाँ पे आएगा गो आउट, राइट। एंड आई विल मिस द लवली संडे, अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मैं अपना जो संडे का लंच है वो मिस कर दूंगा। तो हियर विल कम आई विल मिस, राइट। इफ आई डैश फॉर लंच, तो ब्रैकेट में है स्टे, ठीक है। इफ आई स्टे फॉर लंच, अगर मैं लंच के लिए स्टे करता हूँ, आई डैश द संडे फिल्म शोइंग एट अर्चना थिएटर। सो ब्रैकेट में मिस दिया हुआ है। सो ये भी आपकी इफ क्लॉज है, राइट। सो इफ आई स्टे फॉर लंच, आई विल मिस, यहाँ पे क्या आएगा, विल मिस, आई विल मिस द संडे फिल्म शोइंग एट अर्चना थिएटर, कि अगर मैं लंच के लिए, अगर मैं घर में ही स्टे करता हूँ लंच के लिए, तो मैं क्या करूंगा कि मैं अर्चना थिएटर में अपना एक शो मिस कर दूंगा। आई थिंक आई विल गो आउट एंड सी द फिल्म ओनली टू अवॉइड गेटिंग टू फैट। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर चैप्टर सेकंड, द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। आई होप you all understood it well. So students, thank you.